باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق صدق اللہ العظیم۔ آج کی اس تربیتی نشست و دعا ناظرہ ختم قرآن جسے ادارہ دینیا مکتب تجوید القرآن اکوٹ فائل اکولہ کی جانب سے منعقد کیا گیا ہے، اور اس بزم میں تشریف فرما محسن خاص محترم محمد صدیق صاحب، حافظ فیروز صاحب اور مرزا رشید بیگ صاحب، اور آپ کے اور تمام کی ایک جانی پہچانی شخصیت جنہیں حضرت اقدس مولانا حافظ محمد صادق شاہ صاحب اور ان کے فرزند میرے عزیز طالب علم محمد مدثر حسین اور تمام جو یہاں پر ناظرہ خواہ بچے ہیں اور تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور جو والدین و سرپرست حضرات اس نورانی اور عرفانی بزم میں آئے ہوئے ہیں، میں سب کا اس بزم میں استقبال کرتا ہوں۔ اور جو آیت کریمہ میں نے ابھی یہاں پر تلاوت کی اور آپ نے سماعت کا شرف حاصل کیا، اس کے متعلق چند باتیں، چند گفتگو، کچھ تربیتی گفتگو آپ سے کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ان سب باتوں کو سن کر اپنے دل و دماغ میں پیوست ذہن نشین کر کے اس کو عمل میں لانے کی کوشش کریں گے۔ پیارے بچوں، چونکہ یہ بزم آپ کے لیے سجائی گئی ہے، اس لیے میں سیدھے آپ سے مخاطب ہوتا ہوں۔ آپ یہاں جو چھوٹے چھوٹے نونہالان ملت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور الحمدللہ تعلیم دین، علم دین اس مکتب میں حاصل کر رہے ہیں، آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ نے ناظرہ قرآن پاک ختم کر لیا ہے۔ بیٹے، آپ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں نا، اور جتنے آپ یہاں پر بیٹھ کر کے یہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یقین جانیے جب آپ کے والد اور ہمارے جیسے لوگ مدارس کے لیے جب پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے تو ہمارے کو سیدھے کوئی انتظام نہیں ہوا کرتا۔ مساجد میں جو ہے تو مکتب چلتے تھے، کچھ روز پڑھایا جاتا تھا، بعد میں پھر دوسرے مولانا، پھر تیسرے مولانا، لیکن یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ آپ کے معاونین کے روپ میں یہاں پر آپ کے لیے ایسے اساتذہ مہیا فرمائے کہ وہ آپ کو علم دین سے آراستہ کر رہے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ میری گفتگو کو سنو۔ میں نے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت پڑھا ہوں جو سورہ علق پارہ 30 آیت نمبر 1 قرآن پاک کی سب سے پہلی وحی، جسے کہا گیا اقرا، پڑھو۔ کیا معنی ہے اقرا کے؟ پڑھو۔ اب کس سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ اس ہر انسان سے مخاطب ہے جو پڑھنا جانتا ہے۔ پڑھو، اقرا باسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے جس نے پیدا فرمایا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم کو، آپ کو اور دنیا میں جتنے انسان، جتنے اس دنیا پر خاکدان گیتی پر لوگ موجود ہیں، سب کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور اس نے فرمایا کہ پڑھو۔ اپنے محبوب پر سب سے پہلی وحی نازل فرمائی۔ غار حرا میں جبرائیل امین آتے ہیں اور کہتے ہیں اقرا، پڑھو، باسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے جس نے پیدا فرمایا۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں اس آیت کریمہ کے تعلق سے، کیونکہ دیکھیے میں ایک معلم ہوں اور آپ طلبہ ہیں، اور یہاں پر بھی معلمین بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو۔ بیٹا، اقرا یعنی پڑھو۔ اب جب آپ پڑھیں گے تو بتائیے آپ کس کے حکموں پر عمل کریں گے؟ بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب، بہت اچھی بات ہے۔ اب یاد رکھیے کہ آپ گھر سے جب بھی نکلیں گے
पढ़ने के लिए मकतब के यूनिफॉर्म में जब तैयारी करेंगे तो दिल में ये ज़हन में लाइए कि मैं पढ़ने जा रही हूँ मकतब में और मैं अल्लाह के फरमान पर अमल कर रही हूँ। खुश नसीब है वो वालिदैन, वो सरपरस्त हज़रात जो मकतब में अपने बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए भेजते हैं और वो तलबा जो यहाँ पर आकर के तालीम हासिल करते हैं और वो असातिज़ा जो यहाँ पर तालीम देते हैं। अब ये ट्रायंगल बन गया बेटा, एक मुसल्लस बन गई जिसमें एक जगह तलबा है, एक जगह मुअल्लिमीन है और एक जगह वालिदैन वो सरपरस्त है। अब देखिए कुरान पाक की छोटी सी आयत, इक़रा पढ़ो, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा फरमाया। अब इस आयत पर अमल करने का क्या अल्लाह ताला अजर सवाब देगा? आप यहाँ आकर के बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे और रहमान पढ़ेंगे और रहीम पढ़ेंगे, अल्लाह के नाम से शुरू करेंगे जो निहायत मेहरबान है, हमेशा रहम फरमाने वाला है, तो यकीनन यकीनन प्यारे बच्चों अल्लाह आप पर भी रहमत नाजिल फरमाएगा, आपके वालिदैन पर भी रहमत नाजिल फरमाएगा, आपके असातिज़ा पर भी रहमत नाजिल फरमाएगा। अब पढ़ रहे हैं आप और फायदा कितने लोगों का हो रहा है? फायदा 3 लोगों का हो रहा है, ना सिर्फ 3 लोगों का हो रहा है बल्कि यहाँ पर जो असातिज़ा इकराम है वो यहाँ पर आकर के वक्त दे रहे हैं, वो आपको पढ़ा रहे हैं और तो उनकी फैमिली का भी फायदा हो रहा है। जो आपके वालिदैन हैं जो आपको पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, अल्लाह उनकी भी दर्जात बुलंद फरमा रहा है। गालिबन मेरे पढ़ने में एक वाक़या आया था, मैं आपसे वो जरूर शेयर करूंगा, बगौर सुनिए। एक मर्तबा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक कब्रिस्तान से गुजर रहे। आप जब वहां से गुजरे तो देखा कि एक कब्र पर अजाब हो रहा है। कुछ अरसे के बाद जब वापस पलटे, उसी कब्रिस्तान से गुजर हुआ तो देखा कि उस कब्र में अब अजाब नहीं हो रहा है बल्कि जन्नत के बागात की खुशबू आ रही है। आपने अल्लाह ताला से इंतजा की, अरे खुदावंदा जब मैं इधर से गुजरा था इसी कब्र पर से मेरा गुजर हुआ तो मैंने देखा था कि यहाँ पर एक अजाब हो रहा था, इस कब्र पर आओ फुगा की आवाजें आ रही थी और अब जब मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ तो यहाँ पर से जन्नत के बागों की खुशबू आ रही है। खुदावंदा क्या राज है? अल्लाह ताला ने हातिफ़े ग़ैबी से आवाज आती है कि ऐ ईसा जब तुम यहाँ से गुजर रहे थे और इस कब्र में जो मुर्दा लेटा हुआ था उसने जब मरा तो अपने बच्चे को अपनी माँ की गोद में छोड़ आया था, आज उसका बच्चा इस काबिल हो गया है कि वो उसकी माँ ने उसको मदरसे में दाखिल किया है और आज उसको उसकी उस्ताद ने पढ़ाया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरी गैरत को गवारा नहीं हुआ कि जो बच्चा जमीन पर रहकर मुझे रहमान और रहीम कहे, मैं उसके बाप को कब्र के अंदर अजाब पहुंचाऊं और मैंने जो है तो उसके गुनाह बख्श दिए और उसको जन्नत अता फरमाई। बेटा आप जरूर पढ़िए और इस इन पढ़ने के फवायद हासिल कीजिए। तकरीर करना मेरा मकसद नहीं है, मैं सिर्फ ये चंद बातें इसलिए बोल रहा हूँ कि यकीनन आपके जैसे और कई बहुत सारे बच्चे होंगे जो गलियों में ना जाने अभी किन किन सूरतों में बैठे हुए होंगे, ना जाने क्या क्या काम कर रहे होंगे, लेकिन वाकई में आप बड़े खुशनसीब है कि आप इस्लामिक लिबास के अंदर यहाँ पर ज़ेब-ए-तन की हुई तशरीफ फरमा है। यहाँ पर आपके सरों पर स्कार्फ लगे हुए हैं, आपके सरों पर टोपियां लगी हुई है और आप जो है तो एक इस्लामिक तहजीब का नमूना नजर आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये इन हुफ़ाज़ की, इन माविनीन की मेहनतों का और काविशों का नतीजा है। मैं इन माविनीन की जानिब से आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस मकतब को इस तरह से यहाँ पर मेहनत करके फलने और फूलने का मौका फराहम कर रहे हैं। जरूर कीजिए इस तरह के जो भी काम होते हैं हमारे समाज में, हमारी सोसाइटीज में, तो हमारे लोगों की जिम्मेदारी है कि हर नेक अमल करने वाले को साथ दिया जाए, वरना हमारे पास है ही क्या है। आज अगर मौलिम उस्ताद मोहतरम ने आपको कुछ पढ़ा दिए तो यकीन जानिए कोई भी इंसान आज वहां से लेकर तो यहाँ तक के ये नहीं कह सकता
ये नहीं कह सकता कि मुझे मेरे अमल पर बहुत भरोसा है और मैं इस अमल की बदौलत अपनी आखिरत को बेहतर बना लूंगा। कोई नहीं कह सकता प्यारे बच्चों, लेकिन वो अमल जो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए किया जाता है, अल्लाह उसे कबूल फरमा लेता है। तो आप यकीन जानिए कि आप बड़े काबिल मुबारकबाद तलबा है। आने वाले दिनों में जब यहाँ पर मदरसा शुरू हो रहा है, मुझे बताया गया कि इसकी तालीम भी शुरू होने जा रही है। इंशाअल्लाह अल्लाह उसको जो तो जल्द अज जल्द यहाँ पर शुरू करवा दे। हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चे बेहतरीन हाफिज कुरान बनेंगे। अभी मुझे बताया गया कि ये 4th क्लास की लड़कियां है, 10 साल की उम्र की लड़कियां है, बड़ी खुश नसीब बच्ची है कि आज कुरान पाक उनका नाजरा खत्म हो चुका है। बेटा ऐसी हमारे समाज में कई बड़ी बड़ी खवातीन है जिनको कुरान पाक नाजरा तो दूर की बात, 10 कुरान पाक की सूरतें नाजरा पढ़ते नहीं आती, वो सीखने के लिए जो है तो परेशान है। उनकी नमाजों का क्या हाल हो रहा होगा, उनकी इबादतों का क्या हाल होता होगा। अल्लाह जो तो उनको अपने पनाह में रखे और कम अज कम उनको ये तौफीक नसीब फरमाए कि वो अपने बच्चों को मकातिब में दाखिल करवाए। और आपके ना सिर्फ आप खुश नसीब है, बल्कि मैं तो कहूँगा आपके अगर वालिदैन होंगे यहाँ पर, वो भी बड़े खुश नसीब है कि उनको अल्लाह ने औलाद जैसी नेमत अता फरमाई है। और फिर औलाद की नेमत के बाद उन पर यह कर्म फरमाया कि उनको मकतब में भेजने की सादत नसीब फरमाई और वो यहाँ पर आकर के तालीम हासिल कर रहे हैं। आप तमाम लोग जो है काबिल मुबारकबाद है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके हर अमल को कबूल फरमाए, बच्चों के अमल को कबूल फरमाए, बड़ों के अमल को कबूल फरमाए, आपके वालिदैन के अमाल को कबूल फरमाए। और अल्लाह ताला आपके पढ़ने की बरकतों से हमारे दीन इस्लाम को हमेशा बागो बहार रखे, सरसब्ज़ व शादाब रखे और इस्लाम की नौनिहाल इसी तरह से फलते फूलते रहे। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप जरूर जो है तो इल्म दीन हासिल करके इस इलाके का, इस मकतब का नाम रोशन करेंगे। मुझे मेरे अजीज तालिब इल्म मोहम्मद मुदस्सिर हुसैन ने यहाँ बुलाया, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने 2 अल्फाज खत्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।